dear students, welcome you all in today's class. See, last previous lecture we have completed our the question answer page number till page number 22. Okay, so the swings, our last poem we have solved one by one question answers. Okay, so I would give you, see in the page number 22 मैंने आपको पेज नंबर 22 का क्या दिया था? इट्स अ होमवर्क. लेट्स लिसन एंड स्पीक. यू हैव टू सॉल्व द 3 सेंटेंस आई एंजॉयड, व्हाटएवर यू कैन राइट. देन सेकंड आल्सो, मतलब यू हैव टू राइट इट डाउन अ 3 व्हाट यू एंजॉय. इफ यू एंजॉय टू द पार्क, इफ यू एंजॉय द पिकनिक, इफ यू एंजॉय गो टू द फॉर योर go for shopping with your parents. You have to write it down. It's your homework. Okay, so today we are going to have a new chapter, new lesson. Lesson number 2, the mouse tail and Aesop fable. See, first of all, tail means what is the tail? Everybody knows the mouse tail. The mouse tail. Tail means क्या होता है? It's a story. मतलब कथा, है ना? जैसे हम बोलते हैं, और ये क्या है? The Aesop fable, मतलब एक कल्पित भी स्टोरी बोल सकते हैं इसको. अंडरस्टूड? सो इट्स अ माउस टेल, मतलब ये किसकी कहानी है? इट्स अ माउस, चूहे की. मराठी में क्या बोलेंगे? उनकी. सो इट्स अ माउस टेल. सो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? जैसे हम देखते हैं कि फर्स्टली बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, बिफोर वी स्टार्ट द मीनिंगफुल लेसन, वी हैव टू फोकस द टाइटल, इट्स अ हेडिंग. So our title, our heading is that a mouse tail, a mouse M-O-U-S. Okay, a mouse tail मतलब एक चूहे की कहानी है वो. So an Aesop fable, एक कल्पित कथा. Okay, so see, it's a warm up. Look at the pictures. See, you can see from these 4 pictures. Okay, you can see from the 4 pictures. Understood? So first picture you can see, it's a क्या है? एकदम plain है. It looks like a मैदान, ground, and 2-3 animals like cattle, cow, they are क्या कर रहे हैं? वो वहां पे खड़े, they are standing. In the second picture एक क्या दिखा रहा है आपको? एक घोड़ा गाड़ी दिख रही है. Okay. Third picture में we can see the so many shops. Okay, in the market area. And the fourth picture is the very crowded. Look, it's a very crowded, means we can see it is the main city. So many cars, मतलब वो बोलते हैं ना, it's a traffic दिख रही है हमको. We can see it's a traffic, it's a main area. Okay, so in 4 picture we can easily recognize the 2 pictures of the countryside and 2 picture in a town. मतलब सिटी का बोल सकते हैं, मेन एरिया ऑफ सिटी. ओके, सो वार्म अप दिया है. which picture are of the countryside? See, we can see the 4 pictures. We have to pick, we have to find 2 countryside. मतलब countryside मतलब क्या होता है? शहर के जो आजू बाजू का जो भी परिसर है वो हमको क्या करना है? देखना है. तो हम इजीली देख सकते हैं कि शहर के आजू बाजू वाला परिसर कौन सा है. इट्स पिक्चर नंबर 1 एंड सेकंड पिक्चर नंबर 2, बिकॉज देयर इज अ नो क्राउड. कभी भी हम देखते हैं कि सी वी कैन सी द कंट्री साइड, जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा बाहर निकल जाए इधर फुलचूर साइड, फिर वो आमगांव रोड, तो वी कैन सी इट्स अ वेरी प्लेन, देयर इज अ नो क्राउड बिकॉज देयर इज अ countryside. Understood what is the countryside? And we can see easily 3 and 4, third and fourth picture we are crowded. So it's not a countryside area, it's a in city मतलब शहर के अंदर का भाग है. It's a city, main city बोल सकते हैं. Okay, so which picture are the town or a city? और दोनों में से दिया है कि इन चारों में से we have to, in this 4 picture we have to find the which one is a town or city. Okay, so can you describe one difference between 2? So you have to describe between the 4 pictures. See, we are in a 4 picture, we have to describe in the town and the city. Okay, so what you are describing? So obviously
firstly we pick two pictures in a countryside. After that we pick out this in the city, main city. So we have to easily describe. कैसे describe करोगे कि in the countryside we see it is a very cattle, we can see the cattle, घोड़ा गाड़ी हम जो देख सकते हैं, है ना, हम सब ये लिख सकते हैं. There is a so many trees we can see, and in the city we can see there is a lots of traffic, it's a lots of pollution, sound pollution, air pollution. ऐसे हम लिख सकते हैं one by one. Okay, so where would you like to be and why? 4 दिया है कि इन 4 में से these 4 picture what would you like live the most, मतलब चारों में से आप ऐसी कौन सी जगह है कि वहां पे आप रहना पसंद करोगे. आया बच्चे समझ में? तो ये देखो, ये माउस टेल है, मतलब एक उंदीर की कहानी, एक चूहे की कहानी, एंड एशोप फेबल. एंड इन द वार्म अप इन द 4 you can see the 4 pictures toward the countryside, toward the main cities. यहाँ पे warm up दिया, there is a 4 question they ask or you have to describe between the town and city. Second is you like which you live, मतलब आपको where would you like to be, मतलब आपको कौन सी जगह पे आप रहना पसंद करेंगे. एक तो सिटी और एक तो टाउन, दोनों में से एक लिखना है टाउन. if you will choose the town, please explain why. आपको रीजन बताना है कि क्यों. ओके, सो और वहां पे दिया है कि which picture are the town or city, मतलब there is a 4 picture you have to, मतलब आपको you have to say कि सिटी का क्या महत्व है और किसका टाउन का क्या है. Picture we are just identified. Okay, let's read. Aesop was a writer about whom not much is known. He wrote many stories about animals that ended with a moral lesson for you. These stories are called the fable. ये जो भी स्टोरी है वो क्या है, एक fable से, काल्पनिक भी बोल सकते हैं उसको. Okay, see, open your page number 24. I am reading. Okay, the brown mouse lived under a hedge in a countryside. See, a brown mouse हम जैसे बोलते हैं brown mouse, the mouse is the story based on the mouse tale, मतलब एक जो चूहा है वो अपनी कथा बता रहा है. ओके, तो वो चूहा कौन से कलर का, इट्स अ ब्राउन माउस, भूरे रंग का चूहा, भूरे रंग का चूहा. अ ब्राउन माउस lived मतलब क्या होता है, रहना. live मतलब क्या होता है, रहना. हम बोलते हैं ना where are you live, where do you live, रहना, stay, है ना. हम बोलते हैं कि where do you live, I am living गोंदिया. so तो माउस कहाँ रहता था, a brown mouse lived under मतलब नीचे, hedge in the countryside. hedge मतलब क्या होता है, कांटेदार, मतलब जो, ठीक है. तो एक भूरे रंग का जो चूहा है वो कहाँ पे रहता था, एक देहात मतलब एक गांव में रहता था वो. तो एक भूरे रंग का जो चूहा है वो बाड़े के नीचे, वहां पे ये हेज इन द कंट्री साइड, देहात में एक बाड़े के नीचे वो रहता था. वन डे हिज कजिन, हुज कजिन, द माउस कजिन, मतलब जो भी बोलते चचेरा भाई, उसका मतलब भाई. वन डे हिज कजिन फ्रॉम द टाउन केम टू विजिट हिम. विजिट मतलब क्या होता है, विजिट करना. विजिट मतलब मुलाकात बोलते है ना, मुलाकात, विजिट करना. ओके, मिलना, जस्ट मीट. ओके, सो एक बार एक वो जो चूहा है, भूरे रंग का जो चूहा है, वो क्या था, वो हेज मतलब क्या होता है, कांटेदार चूहा, जो कांटे रहते हैं उसको, वो जो कांटेदार चूहा है वो देहात में रहता था. एक दिन उसका जो कजिन है, जो चचेरा भाई है, वो क्या था, उसको लगा कि मैं टाउन जाता हूँ और वो चूहे को मिल भी लेता हूँ. ओके, I thought I would try out life in the countryside, said the town mouse. तो टाउन माउस जो था उसको ऐसा लगा, वो सोच रहा था कि I would try out life in the countryside. मुझे जो मैं जहाँ कंट्री साइड में मतलब देहात में रहता था, तो मुझे ट्राई करना चाहिए टाउन में रह के, मतलब टाउन में कैसा एक्सपीरियंस आएगा. ऑलरेडी he had lived where in the countryside, but he thought why would I
मैं क्यों नहीं टाउन में रहने का सोचूं, ऐसा ब्राउन माउस से, ओके। ओ यू विल लव इट हियर, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे रह के, ओके। रिप्लाइड द ब्राउन कंट्री हाउस, तो किसने बोला ऐसा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे रह के। तो ही डिड एवरीथिंग ही कुड टू लुक आफ्टर हिज टाउन कजिन, उन्होंने सब किया, ही डिड एवरीथिंग, जो भी उनको करना था वो सब किया। ही कुड ही लुक आफ्टर हिज टाउन कजिन, वो देखना चाहता था कि उसका जो टाउन कजिन है, मतलब शहर में रहने वाला जो उसका भाई है वो कैसे दिखता है, ओके। ही गेव हिम द बेस्ट पीस ऑफ ग्रास ऑन अ स्लीप, जैसे ही उसका चचेरा भाई कंट्री साइड में आता है, और उसका चचेरा भाई वेयर ही लिव्ड इन अ टाउन, एंड ब्राउन माउस वेयर ही लिव्ड इन अ कंट्री साइड। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द कजन ब्रदर एंड द माउस जो मेन स्टोरी टेलर है, जो मेन चूहा है, वो ब्राउन कलर का, वो कहाँ पे रहता था, कंट्री साइड में, और उसका जो कजिन रहता था वो कहाँ रहता था, ही इज लिव्ड इन वेयर इट्स अ टाउन, ओके। सो जब वो चचेरा भाई जो मतलब उसको नाम दिया है कि टाउन माउस व्हेन ही केम इन अ कंट्री साइड, तो उसकी पूरी खातिरदारी में जो ब्राउन माउस रहता है वो क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से जो ग्रीन सरफेस है वहां पे वो जगह देता है सोने के लिए, वहां पे दिया है। ही गेव हिम द बेस्ट पीस ऑफ ग्रास टू स्लीप ऑन, सोने के लिए बहुत ही अच्छी जगह देता है वो। देन द टेस्टियस्ट नट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, और बहुत ही ज्यादा वो जो नट्स रहते हैं और बहुत सारी हरी सब्जियां उसको खाने के लिए वो ब्राउन माउस अपने कजिन ब्रदर को देता है, ओके। द टाउन माउस फाउंड द फूड हॉरिबल एंड लाइफ बोरिंग, जो टाउन माउस है, टाउन माउस मतलब कौन, कजन, वो कजन माउस जो टाउन माउस है वो क्या करता है, बहुत ही भयंकर, और जो भी उसकी लाइफ बोरिंग वो फाउंड करता है, मतलब उसको मिलता है। कम विथ मी टू द टाउन, तो वो क्या बोलता है उसको, मतलब जो टाउन वाला है, कजन वाला जो ब्रदर है, जो टाउन माउस है, वो किसको बोलता है, अपने ब्राउन माउस को बोलता है कि चल तू भी मेरे साथ टाउन में, मतलब तू यहाँ पे कंट्री साइड, यहाँ पे देहात में रह के तू क्या कर रहा है, तू भी मेरे साथ कहाँ चल, शहर चल। वी कैन हैव सम फन देयर, और हम वहां पे जाके क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मौज मस्ती करेंगे, ओके। सो ही सेड टू द ब्राउन कंट्री माउस, तो उसने ब्राउन कंट्री माउस को बोला, हु सेड, इट्स अ टाउन माउस सेड टू द कंट्री माउस साउंड, why you are staying here is so boring, you have to come with me, you would love to be there, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा if you will come with me in a town, okay। so off they went, ये सब बोल के सब चले गए। they entered a large town house, फिर इसी बात से फिर वो कहाँ गए, वो सभी टाउन में चले गए। they entered a large town house, वो जैसे ही फिर सो ऑफ दे वेंट, वो टाउन में चले गए। टाउन में चले जाने के बाद एंटर्ड अ लार्ज हाउस, उन्होंने बहुत ही एक बड़े से महल में उन्होंने एंट्री की। स्क्रैबलिंग, इट्स अ वर्ड, इट्स अ स्क्रैबलिंग, स्क्रैबलिंग मीन्स पता है कि हम झटके से जैसे पाव मार देते हैं, पाव मारना है ना, ओके। स्क्रैम्बलिंग, सो दे एंटर्ड अ लार्ज टाउन हाउस स्क्रैम्बलिंग अंडर द बैक डोर, तो उन्होंने कैसे किया, पाव मारना मतलब स्क्रैम्बल किया, कहाँ पे, डोर को हल्के से उन्होंने लात मारी। स्क्रैम्बलिंग अंडर द बैक द डोर, द टाउन माउस लेड द वे अप द स्टेयर्स, और जो टाउन माउस था वो क्या कर रहा था, सीढ़ियों से आ रहा था, वे अप ऑन द स्टेयर्स टू द डाइनिंग रूम, मतलब वो ऊपर से स्टेयर से मतलब जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से वो क्या डाइनिंग रूम की तरफ आ रहा था, ओके। एंड अप टू डाइनिंग रूम, और किसके ऊपर चढ़ा, वो डाइनिंग रूम के ऊपर, ओके। फूड वाज स्प्रेड आउट लाइक फीस्ट फॉर अ किंग, और जब सी the brown mouse and the town mouse, they both enter a large town, okay। after that when they saw the big town house, मतलब
town they saw a big house. Okay, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा महल देखा. उसके बाद they entered that house, they scrambling door and they silently stair up a stair. मतलब वो enter हुए वो घर में, उन्होंने हल्के से अपने पाँव से डोर मतलब दरवाजा खोला, वो सीढ़ियों से ऊपर गए. सीढ़ियों से ऊपर के बाद वो सीधा कहाँ पे गए? He just went out in a dining room. और after the dining room, what they looked a huge feast. Feast मतलब बहुत ही ज़्यादा भोजन, मतलब feast बोलते ना बहुत ज़्यादा, मतलब खाने की सभी चीज़ें हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राज्यों के लिए, मतलब राज्य दरबारों के लिए वो खाना परोसा जा रहा है. वहाँ पे लिखा भी है दे स्प्रेड, मतलब पूरी तरह से, मतलब खाना ऐसे फैला था. स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलना, है ना? SPRED. फैला हुआ, हम जैसे बोलते हैं फैला हुआ, है ना? ओके, तो what they see, their feast spread. Okay, feast for king. The country mouse could not believe his eyes. जैसे ही when he saw the whole मतलब it's a spreading food, so country mouse they does not believe on his eyes. उसको यकीन नहीं हो रहा था because he never see the food like this. मतलब उसने कभी ऐसा फूड नहीं देखा था, तो that's why he does not believe in eyes. उसको अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था. Okay, I have never seen so much food. He squealed मतलब चिल्लाना, मतलब वो बोल रहा है कि इसके पहले मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें स्क्वीड मतलब क्या होता है? चिल्लाना. ओके, वो बोल रहा है कि he didn't believe on his eyes. हाँ, believe his eyes. He never seen so much food like this. तो चूहा क्या बोलता है कि जैसे, क्योंकि because he lived in a countryside, वो देहात में रहता था, बट वो अपने ब्रदर के साथ कहाँ गया था? शहर में गया था. तो शहर में इतनी सारी देहात में रहने के कारण उसने वो सारी चीजें कभी देखी नहीं थी. तो फर्स्ट टाइम when he saw the food is spread like feast for a king, तो उस टाइम पे he does not believe on his eye because he never seen like this. आया समझ में? तो यहाँ तक स्टोरी हमने पढ़े. तो इसके बाद की जो स्टोरी है हम कल के लेक्चर में पढ़ते हैं, कल के क्लास में पढ़ेंगे. ओके, सो टिल देन यू हैव टू रीड मतलब एटलीस्ट ट्वाइस. ओके, यू हैव टू रीड 2-3 times and you have to understand yourself. So next time I will explain in the next class. Okay children, so see you soon.